Hello everybody and I welcome you to this session of how to pick a business idea. This session is relevant to everybody who just wants to pick one or two doable ideas from all the ideas that they usually get in a day. बिजनेस आइडिया सेलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या होता है वो मैं भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और मैं ये समझाऊंगा आपको कि स्टेप्स क्या होते हैं जो आप फॉलो करने चाहिए when you want to narrow down to one idea that can actually be presented in your Shark Tank finale. Now, how to select a business idea usually starts with one step that is common for everybody who wants to figure out a business idea, and that step is basically called as observation. Okay, when I say observation, what I'm trying to say is observe things around you. When you observe things around you, आपको दो चीजें दिखेंगी. The first thing that you will find is products. The second thing that you'll find is services. Whatever tangible things that you're able to see around you, soap, shampoo, Coca-Cola, bread, butter, जो भी चीज आपके आसपास अभी दिख रही है, all these things are basically classified as products. इनको आप टच कर सकते हो. Similarly, आप स्विगी से फूड ऑर्डर करते हो, व्यक्ति आता है खाना लेके आपको डिलीवर करता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किसी मूवी थिएटर में जाते हो, all these things are called as experiences and they're also called as services. तो आप बेसिकली या तो प्रोडक्ट को बिजनेस को देख सकते हो, प्रोडक्ट को एक बिजनेस बना सकते हो, या तो एक सर्विस को एक बिजनेस बना सकते हो. बट द होल प्रोसेस स्टार्ट्स विद द ऑब्जर्वेशन. अपने आसपास देखिए कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं. आसपास देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद, द सेकंड इमीडिएट स्टेप इज टू एक्चुअली फाइंड द गैप्स. आई रिपीट द स्टेप 2 इज फाइंड द गैप्स. आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिखेंगी ना, यू विल रियलाइज कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि और अगर होती तो योर लाइफ वुड हैव बीन ईजियर. लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आप बेड पे सोने जा रहे हैं, यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू स्लीप एंड द लाइट इज स्टिल ऑन, और आपको रियलाइज होता है अभी कौन उठे, यू टू लेजी टू वेक अप एंड स्विच द लाइट ऑफ. किसी व्यक्ति को ये सेम थॉट आया था एंड दैट व्यक्ति केम अप विद दिस आइडिया ऑफ कॉल्ड स्मार्ट बल्ब. आप उस बल्ब को चालू या बंद आपके फोन की स्क्रीन से कर सकते हैं. सो बेसिकली अ बिजनेस आइडिया जस्ट स्टार्ट्स with a thing called problem solving. So when you observe things around you, you'll find a problem around you, a gap around you. इस गैप को आप ऑब्जर्व करिए और देखिए कि कौन सी गैप है जो आप फिल कर सकते हैं. जस्ट टू गिव यू टू सिंपल एग्जांपल्स. फर्स्ट इज सबवे. तो देखा कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे फास्ट फूड जॉइंट्स हैं जो कि खाना दे रहे हैं बट वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है. So the person thought कि let me come up with a healthy food and healthy food option that is also affordable at a particular rate. Subway is a solution. तो उन्होंने गैप देखी, सॉल्व किया. सिमिलरली किसी ने गैप देखी कि बहुत थक गए हैं, हर बार कौन बाहर जाके चीजें खरीदे, हर बार कौन बाहर जाके खाना खरीदे, रादर खाना घर पे नहीं आ सकता क्या? Brands like Big Basket, brands like Zomato, Swiggy solved this gap and came up with their own business idea. So the second step is always find the gaps. Then try to understand what are the gaps that you can completely fill. ठीक है, आपकी टीम आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, and you will understand that your team will have its own strengths and weaknesses. And step 3 is to understand your strengths and weaknesses and accordingly narrow down ideas. When I say narrow down ideas, what I mean is आप 10 आइडियाज सोचेंगे, उन 10 आइडियाज में से आप बोलेंगे कि 5 आइडियाज हैं जो हम कर सकते हैं, बाकी 5 हम नहीं कर सकते. We do not have the necessary knowledge, we don't have the necessary money, we don't have the necessary finance or the resources. और ये limitations को हमको समझना पड़ता है. ठीक है, so you have to understand the strength of your team, the weakness of your team and actually ask yourself a question. What is the problem that you can solve? तो अगर आपको आपके आसपास 10 प्रॉब्लम्स दिखी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती. ठीक है, आप प्रॉब्लली बोल सकते हो कि मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद करूंगा. So 10 problems you find out and then you say I'll be able to solve 5 out of them. This is your third step. Can you solve it? That's where the idea actually happens. After step 3, always understand that yes, the constraints are always there. हम infinite resources के setup में काम नहीं कर रहे हैं. You might say कि sir, I have an idea, let's go to the Jupiter. हाँ, हम शायद जा सकते हैं if we have the right kind of knowledge. But if we don't have the right amount of knowledge, we might not be able to make it. And that is why 2 things are very, very important. You should understand what is the amount of finance that you have, what is the amount of knowledge that you have, कितना हमको पता है, हम उसकी टेक्निक्स फिगर आउट कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी के केस में हम कितना इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. द थर्ड थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज बेसिकली टाइम. ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ टाइम डू यू हैव. तो अगर आपके पास इनफाइनाइट टाइम होता हो सकता है बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्लान बना सकते थे, लेकिन आपके पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है.
अंडर दीज 3 कंस्ट्रेंट्स, ये 3 कंस्ट्रेंट्स अगर आपको पता चल जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छा रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाएंगे। एंड दीज 3 कंस्ट्रेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। तो 10 प्रॉब्लम ढूंढने थे, उसमें से 5 नैरो डाउन किए सर, ये स्ट्रेंथ वीकनेसेस के हिसाब से कर सकते हैं। उसमें से 5 में से वापस 2 हटा दिए, क्योंकि सर ये तो नहीं कर पाएंगे, 5 दिन में नहीं हो पाएगा, 4 दिन में नहीं हो पाएगा। टाइम, फाइनेंस एंड नॉलेज, इन तीनों को कंस्ट्रेंट को देखिए, फाइनली यू विल बी प्रॉब्ली एबल टू नैरो डाउन टू 2 or 3 आइडियाज। एंड फाइनली वंस यू डू दैट, यू विल रियलाइज दैट इन 2 या 3 आइडिया में से एक वोट कर लेते हैं। लेट्स डू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लेट अस वोट विच आइडिया इज बेटर। ठीक है, आई जस्ट गिव वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन हियर। ट्रस्ट मी गाइज, वंस यू आर अ टीम, इट इज नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द टीम। तो प्लीज ये मत सोचिए दैट दिस इज माई आइडिया, दिस शुड गेट सेलेक्टेड, दिस इज माई आइडिया, दिस शुड गेट सेलेक्टेड। नो, you just have to understand which idea is best for the whole team, because it eventually a team wins the competition, an individual does not. And so you have to evaluate the idea. And evaluate the idea का मतलब है कि क्या हम ये आइडिया 3 दिन में कर पाएंगे, क्या हम इस आइडिया को निभा पाएंगे, will we be able to present this in a very good way, do a democratic process there, vote for the best idea, और अपनी टीम में से consensus ले लीजिए, जिनके maximum votes हों उस आइडिया के लिए, go for that idea, and also take a very important suggestion from your mentors whether they find that your idea will be a very good presentation or not. तो ये सारे factors consider करके you can finally narrow it down to the idea that you think will be best for your team. And once I say all this, the next obvious step is आप start कर दीजिए भाई, आप start कर दीजिए, make the plan and then there are other videos to guide you as well. I'm sure Orfiki के YouTube channel पे, Orfiki on Demand पे आपको और भी videos मिल जाएंगे which will talk about the flow of the presentation, about the presentation tips and various other things for the D-Day of Shark Tank. ठीक है, आप अलग अलग डोमेन में से भी पिक कर सकते हैं कहाँ से आपको बिजनेस करना है। अलग अलग प्रोडक्ट डोमेन्स कुड बी टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स, फूड बेवरेजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी जो चीज़ बना सकते हो ना वो प्रोडक्ट में आ जाएगी। सिमिलरली सर्विस सेक्टर में आपके आ जाएंगे एजुकेशन, हेल्थ, फिटनेस, ठीक है, एग्रीगेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म। एग्रीगेशन मतलब कि मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, कोई और है जो प्रोडक्ट बना रहा है, कोई और है जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, मैं बस वहां से इन लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा रहा हूँ। these services are called as aggregators. ठीक है, सो यू कैन पिक अप एनी डोमेन, प्रोडक्ट के डोमेन भी ले सकते हो, सर्विस के डोमेन भी ले सकते हो, एंड स्टार्ट विद द आइडिया। लास्ट फाइनल प्रो टिप, evaluate the idea fast because you will have limited number of days, एंड फटाक से पहली ही मीटिंग में आइडिया फाइनलाइज कर लो ताकि आप तुरंत उस पर काम कर पाओ। थैंक यू सो मच, आई एम नितेश साजवानी, वी आर ऑर्फिकी ऑन डिमांड।